بٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں صنعتوں کے شہر میں فضائی آلودگی عروج پر کیسے قابو پائیں۔ محکمہ ماحولیات کے پاس وسائل کی کمی، 660 ٹیکسٹائل یونٹس، 450 بھٹے، ہزاروں دھواں چھوڑتی گاڑیوں کے لیے محکمے کے پاس 5 انسپیکٹرز اور 1 گاڑی موجود ہے۔ کم وسائل میں کس کو چیک کریں، کس کو چھوڑیں، انسپیکٹرز نے سر پکڑ لیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ صنعتوں کے شہر میں فضائی آلودگی عروج پر ہے، قابو کیسے پائیں، محکمہ ماحولیات کے پاس وسائل کی کمی ہے۔ اسی پر بات کریں گے رمضان مرزا سے، جی اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، فیصل آباد شہر جو کہ صنعتی ہب ہے، یہاں پر آلودگی کو کنٹرول کرنے کے لیے موجود محکمہ ماحولیات کی حالت خاصی پتلی ہے۔ فیصل آباد میں جہاں پر 600 سے زائد بڑے صنعتی یونٹس موجود ہیں، 400 سے زائد بھٹے یہاں پر موجود ہیں، 16.5 لاکھ سے زائد گاڑیاں یہاں پر رجسٹرڈ ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو لوہے کی بھٹیاں ہیں اور اسی طرح کے دیگر یونٹس بھی موجود ہیں، جہاں سے پیدا ہونے والا دھواں اور دیگر ماحولیاتی آلودگی اور اس کے اجزاء جو ہے فیصل آباد کے ماحول کو تباہ کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو محکمہ ماحولیات ہے، وہاں پر جو ڈپٹی ڈائریکٹر موجود ہیں، ان کے پاس لیبارٹری کا اضافی چارج موجود ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹرز بھی جو ہے وہ سینکشن تعداد کے مطابق موجود نہیں۔ جو متعلقہ جو اس حوالے سے ٹاؤنز ہیں اور تحصیلیں ہیں، وہاں پر انسپیکٹرز کی تعداد جو ہے وہ ٹاؤنز اور تحصیلوں کے مطابق موجود نہیں۔ اس کے علاوہ جو فیلڈ اسسٹنٹس ہیں، ان کی بھی بیشتر اسامیاں خالی ہیں۔ محکمے کو چلانے کے لیے یومیہ یا ماہانہ الاؤنس بھی حکومت کی جانب سے نہیں دیا جاتا۔ 1 گاڑی ہے پورے محکمے کے لیے اور روزانہ کی بنیاد پر بھٹوں کی فیکٹریوں کی انسپیکشن جو ہے وہ محکمے کے افسران اور ملازمین اور سٹاف کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، جس سے نظر یہ آ رہا ہے کہ حکومت پنجاب اس معاملے میں سنجیدہ ہی نہیں۔ سموگ آتی ہے تو اس صورتحال میں محکمے کو متحرک بھی کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی الاؤنس اور اس طرح کا جو وسائل ہے اس سے محروم رکھا جاتا ہے۔ تو نظر یہ آ رہا ہے کہ فیصل آباد کے ماحول کو تباہ کرنے میں جہاں پر صنعت کاروں اور دیگر جو ایسے یونٹس موجود ہیں ان کا ہاتھ ہے، تو حکومت پنجاب بھی اس کے حکومت کی جانب سے الاؤنس بھی نہیں دیا جاتا۔ بہت شکریہ رمضان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ مین شاہراہوں سے کچرے کے ڈھیر ختم نہ کیے جا سکے، سرگودا روڈ پر جا بجا کچرے کے ڈھیر، شہری پریشان ہو گئے۔ متعدد بار شکایات کی مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی، علاقہ مکینوں کا شکوہ سامنے آ گیا۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں وسیم احمد سے۔ جی وسیم، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، جھنگ کی مین شاہراہوں سے کچرے کے ڈھیر ختم نہیں کیے جا سکے، جس کی وجہ سے جو ٹرانسپورٹ ہے ان کو بھی گزرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، شہریوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں شہری، ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ بھائی بتائیے گا، شہر کو صاف کرنے کے لیے ضلع انتظامیہ نے کام بھی شروع کیا تھا، لیکن پھر دوبارہ کچرے کے ڈھیر جگہ جگہ پر موجود ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اسی حوالے سے کہیں گے کہ ڈی سی صاحب نے نوٹس لیا تھا، اسی ایک ہفتہ ہی صفائی ہوئی تھی، پھر بعد میں وہی گندگی ہو گئی ہے۔ ڈی سی صاحب سے گزارش ہے کہ یہ پراپر طریقے سے اس کا چیک اینڈ بیلنس کیا جائے اور جنگ سے روڈوں سے گندگی کا ڈھیر ختم کیا جائے تاکہ شہری سکون سے سانس لے بالکل شہری سکون سے سانس لے سکے۔ شہریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں پر پہلے جو تھے وہ کچرا ڈالنے کے لیے کنٹینرز رکھے گئے تھے، لیکن اس موجودہ جو انتظامیہ ہے اس نے یہاں سے جو کچرے کے کنٹینر ہیں وہ بھی شہریوں کا کہنا ہے کہ کچرے کے ڈھیر کے باعث مختلف قسم کی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا وسیم احمد، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ڈی سی کے دورے بھی کام نہ آئے، چنیوٹ کے علاقے محلہ غفور آباد اور دل خوشاب میں سیوریج پائپ لائن بند، اندرون شہر کا سیوریج سسٹم تباہ، پانی جمع ہونے سے راہگیروں کو شدید دشواری کا سامنا ہے۔ جی بالکل، آپ کو اپڈیٹ کرنے کے ڈی سی کے دورے بھی کام نہ آئے، چنیوٹ کے علاقے محلہ غفور آباد اور دل خوشاب میں سیوریج پائپ لائن بند ہو گیا۔ اسی پر بات کریں گے بابر منیر سے۔ جی بابر، بتائیے گا علاقہ مکینوں کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ نئے تعینات ہونے والے جو ڈپٹی کمشنر سید مسعود نعمان ہیں، ان کے دورے بھی جو ہے وہ کسی کام نہیں ہے، اور شہر میں بڑا دعویٰ کیا گیا تھا نئے تعینات ہونے والے ڈپٹی کمشنر کی جانب سے کہ صفائی ستھرائی کے انتظامات کو یقینی بنایا جائے گا۔ یہ محلہ غفور آباد ضلع کا سب سے بڑا محلہ ہے اور اس کی یہ صورتحال ہے، جگہ جگہ پر کوڑے کرکٹ کے ڈھیر ہیں، تو کہیں پر آئے روز سیوریج پائپ لائن جو ہے وہ بند رہتی ہے، جس سے خاص طور پر یہاں کے جو مکین ہیں وہ شدید اذیت سے دوچار ہیں، مچھروں اور مکھیوں کی بہتات ہے، اور علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ رات میں انہیں نیند تک جو ہے وہ نہیں آتی اور شدید اذیت سے وہ جو ہے وہ دوچار ہے۔ علاقہ مکین موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ محترم، کیا مطالبہ کریں گے؟ السلام علیکم بھائی جان، یہ شہر سے جو بھی محلہ جینے والے ہیں سب کوڑا کر کے یہاں پہ پھینک دیتے ہیں، رات کو سونے کی مشکل آ جاتی ہے، بارش کا سیوریج کا پانی ادھر آ جاتا ہے اور بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر صاحب کو چاہیے کہ یہ ادھر وزٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر مہربانی کریں، انہوں کو سمجھایا کہ یہ ختم کر جائے، ہمیں مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سب بھائی پریشان ہے، سب دوست بھی پریشان ہے، گھر والے سب نزدیک
जो भी सब परेशान है इधर। बिल्कुल जी, इलाका मुमकिनों की बात सुनी है और उनका इस सिलसिले में कहना है कि डिप्टी कमिश्नर की जानिब से दौरे ज़रूर किए गए हैं, हर शहर में हर इलाके में दौरा किया गया, लेकिन इसके बावजूद इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया बाबर तफसीलात से आगाह करने के लिए। चिन्योट शहर का इकलौता हॉकी स्टेडियम हुकूमती तवज्जो का मुंतज़िर। नेशनल हॉकी स्टेडियम चिन्योट में लगी घास खुश्क होने लगी। मुतादिद जगहों से ना घास की कटाई हुई और ना ही सफाई। हॉकी स्टेडियम में लगे पोल्स भी टूट फूट का शिकार हो गए। आपको अपडेट कर रहे हैं कि चिन्योट शहर का इकलौता हॉकी स्टेडियम हुकूमती तवज्जो का मुंतज़िर। नेशनल हॉकी स्टेडियम चिन्योट में लगी घास खुश्क होने लगी। इसी पर मजीद बात करेंगे अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ म्यूनसिपल हॉकी स्टेडियम चिन्योट में और ये इंतजामिया की अदम तवज्जी का शिकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो यहाँ पर कोरियन घास लगाई गई थी वो उसको जो है वो कई माह से पानी नहीं दिया गया, जिसकी वजह से जो घास है वो खुश्क हो रही है। और इसके अलावा जो यहाँ पर पोल लगाया गया है वो टूट फूट का शिकार दिखाई दे रहा है, जबकि नायाब इकसाम के पौधे भी खुश्क होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन म्यूनसिपल अफसरान की जानिब से इस स्टेडियम की ज़बू हाली को दूर करने के लिए कोई इकदाम नहीं की जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है सैयद नूरुल हसन शाह साहब, जो कि समाजी रहनुमा है। सर, आप देखिएगा कि पार्कों की हालत को देखा जाए, स्टेडियम देखा जाए, तो शहर में सफाई सुथराई समेत जो पार्क है, जो स्टेडियम है, उनको हालत को बेहतर बनाने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे, क्या कहते हैं? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान की सुस्ती, गफलत, लापरवाही की वजह से ये जो स्टेडियम है ये इंतहाई ज़बूहाली का शिकार हो चुका है। पौधे सूख चुके हैं और जो इमारत हैं वो खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। ना ही यहाँ चौकीदार है और ना ही यहाँ इसकी मुनासिब तरीके से बंदोबस्त किया जाता है। एक वक्त वो था कि जब यही जो हॉकी स्टेडियम था, दूर दराज के अजला से लोग आकर यहाँ मुख्तलिफ किस्म की हॉकी स्टेडियम में खेले खेलते थे, लेकिन अब ये ज़बूहाली का शिकार हो चुका है। मैं मुतालबा करता हूँ CO म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और डिप्टी कमिश्नर चिन्योट से को वो इसका फिलफौर नोटिस लें और इसकी तंजीम आरइश और मुरम्मत का करें, ताकि खिलाड़ी है जो है वो यहाँ अच्छे तरीके से खेल सके। हाँ जी बिल्कुल, ये ग्राउंड देख सकते हैं कि यहाँ पर जो घास लगाई गई थी वो अच्छी तरीके से खेल सके। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल कदीर, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। चिन्योट ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाइयां। बच्चों की गाड़ी मोटरसाइकिल चलाने पर 2 रोज में 500 से ज्यादा चालान कर दिए गए। इसी पर बात करेंगे वकार घुमन से। जी अपडेट कीजिएगा। जी, चिन्योट ट्रैफक पुलिस की जानिब से कम उम्र ड्राइवर हैं जो उनके खिलाफ मुहिम शुरू की गई है, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। ट्रैफिक इंचार्ज चिन्योट अमानुल्लाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अमानुल्लाह साहब, ये बताइएगा कितने लोगों के खिलाफ अब तक कार्रवाई की गई है और ख़ास तौर पे जो छोटी उम्र के बच्चे गाड़ी चलाते नज़र आते हैं, हादसात का भी शिकार होते हैं, उनके वालिदैन को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम मोटरसाइकिलिस्ट को पैगाम देना चाहता हूँ कि जब भी मोटरसाइकिल पे घर से निकलें तो रोड सेफ्टी मेजर्स पूरे करके निकलें। सबसे पहले आप हेलमेट का इस्तेमाल करें और उसके बाद साइड मिरर जो होते हैं, साइड मिरर के अलावा घर मोटरसाइकिल पे सफ़र ना करें। चूँकि पंजाब में आज फिगर जितने निकले हैं 3,11,000 एक्सीडेंट हुए हैं 2020 में, पिछले साल में, और उन 3,11,000 में से 83% मोटरसाइकिलिस्ट के एक्सीडेंट हुए हैं। 83% जो हादसात हैं वो मोटरसाइकिलिस्ट के हुए हैं। इसलिए हमने कैंपेन शुरू की है DPO साहब के हुक्म से इस डिस्ट्रिक्ट में, और पंजाब हुकूमत की तरफ से हमने कैंपेन शुरू की है। हफ्ता सेफ्टी रोड है जो हमने शुरू किया है, और इसमें हम कम उम्र जो ड्राइवर हैं या ऐसे मोटरसाइकिल सवार जिन्होंने बहुत शुक्रिया वकार तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसले के लिए आज होने वाले बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस इजलास मुलतवी कर दिया गया। आपको अपडेट करें कि 23 मई तक बंद तालीमी इदारे कब खुलेंगे। फैसले के लिए आज होने वाला बैनुल सूबाई वज़राए तालीम इजलास मुलतवी कर दिया गया है। आपको बताएं कि 23 मई तक बंद तालीमी इदारे कब खुलेंगे। फैसले के लिए आज होने वाला बैनुल सूबाई वज़राए तालीम इजलास मुलतवी कर दिया गया है। आपको अपडेट करें इस हवाले से 23 मई तक बंद तालीमी इदारे कब खुलेंगे। फैसले के लिए आज होने वाला बैनुल सूबाई वज़राए तालीम इजलास मुलतवी कर दिया गया है। आपको अपडेट करें कि 23 मई तक बंद तालीम इदारे कब खुलेंगे। फैसले के लिए आज होने वाली बैनुल सूबाई वज़राए तालीम इजलास मुलतवी कर दिया गया। आपको अपडेट करें, अहम खबर है कि 23 मई तक बंद तालीम इदारे कब खुलेंगे।
फैसल आबाद में डायरेक्टर लेबर नदीम अख्तर की जेर सदारत मजदूर तंजीमों का इजलास। महकमा लेबर की जानिब से मजदूरों को वैक्सीनेशन लगवाने के हवाले से आगाही दी गई। आपको अपडेट कर रहे हैं कि फैसलाबाद में डायरेक्टर लेबर नदीम अख्तर की जेर सदारत मजदूर तंजीमों का इजलास हुआ है। इसी पर बात करेंगे शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। फैसलाबाद के महकमा लेबर से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां पर नदीम अख्तर जो कि डायरेक्टर लेबर हैं, उनकी ज़ेर सदारत ये इजलास मुनक्किद हुआ है। मजदूर तंजीमों के लीडरान जो हैं इस इजलास में मौजूद हैं, जिसमें लतीफ़ अंसारी साहब भी मौजूद हैं। और आज कोरोना वबा से बचाव के लिए जो वैक्सीनेशन है उसकी आगाही मजदूरों को दी जा रही है कि किस तरीके से ज़रूरी है अभी, क्योंकि फैसलाबाद शहर के हवाले से बात की जाए, क्योंकि बाकी शहरों का नहीं पता। फैसलाबाद शहर के अंदर 1% भी मजदूरों ने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई। उसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि मजदूरों में उसकी अवेयरनेस नहीं है, उसकी आगाही नहीं है। यही वजह है कि मजदूरों की जानिब से अभी तक कोई इनिशिएट नहीं लिया गया। नदीम अख्तर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। किन चीज़ों की ज़रूरत है जिससे मजदूरों को आगाही होगी और वो भी जो है वैक्सीनेशन की तरफ जाएंगे, इस हवाले से आज गुफ्तगू की जा रही है। नदीम साहब बताइएगा, क्या कहेंगे इस हवाले से? आज इजलास भी आपने किया है, मजदूरों के लिए ख़ास तौर पर उनकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या कहेंगे सवाल? सर, जैसा कि आपने बट साहब बताया भी है कि ये इस वक्त जो वैक्सीनेशन है सबसे इम्पॉर्टेंट काम है जो हमें करना चाहिए, अपनी सेहत के हवाले से भी और समाजी तौर पे भी और इक्तिसादी तौर पे भी। तो इसके लिए आज हमने LQM वालों से मीटिंग अरेंज की और इनको कहा कि आप अपने हल्का, जो आपका हल्का है वहाँ ये इस चीज़ को मज़दूरों को रोशनास कराएं कि वैक्सीनेशन कितनी इम्पोर्टेंस है इसकी। और इस सिलसिले में अब एक अच्छी बात ये हुई है कि सबसे पहले ये बाबा लतीफ़ वगैरह और इनके जितने भी लीडरान हज़रात हैं उन्होंने ये एश्योरेंस दी है कि कल तक वो अपनी वैक्सीनेशन कराएंगे, और जिससे जो है उससे जो नीचे मज़दूर हैं उनमें कॉन्फिडेंस आएगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ आएंगे कि वो अपनी वैक्सीनेशन कराएं। लीडर जो है सबसे पहले अगर वैक्सीनेशन करवाएंगे तो फॉलोअर्स ऑटोमेटिकली उनके पीछे आएंगे। वैक्सीनेशन के हवाले से मजदूरों को आगाही दी गई। बहुत शुक्रिया शराज, तफसीलात से आगाह करने के लिए। लॉकडाउन में नरमी, अब कैदी अपने प्यारों से मिल सकेंगे। IG जेल खानाजात मिर्जा शाहिद सलीम बेग ने हिदायत जारी कर थी। कोरोना के पेश नज़र मुलाकात पर पाबंदी आयद की गई थी। मजीद जानते हैं फरजाना सिद्दीक से। जी फरजाना, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब समेत फैसलाबाद रीजन की जेलों में मकीद कैदियों और असीरान के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। लॉकडाउन में नरमी करते हुए इनके लवाहिकीन से मुलाकात का सिलसिला दोबारा बहाल करने का फैसला कर लिया गया है। इस हवाले से IG जेल पंजाब मिर्जा शाह सलीम बेग ने पंजाब भर की जेलों की सुप्रीडेंट्स को मरासला भी जारी कर दिया, जबकि फैसलाबाद और सरगोदा रीजन जेल DIG सईदुल्लाह गोंदल ने भी तमाम रीजन की जेलों के सुप्रीडेंट्स को बाकायदा तौर पर अहकाम जारी कर दिए हैं कि कोरोना SOPs को मद्देनजर रखते हुए जेलों में मकीद कैदियों और असीरान की उनकी प्यारों से मुलाकात करवाई जाए। कोरोना वबा के बायस मुकम्मल तौर पर जेलों में भी लॉकडाउन कर दिया गया था और मुलाकात पर सख्ती से पाबंदी आई थी। कोई भी अपनों से नहीं मिल सकता था, जबकि ईद जैसे मौका पर भी मिलने की इजाज़त नहीं दी गई, जिससे कैदी और उनके लवाहिकीन भी सख्त ज़हनी खौफ से दोचार थे। ताहम जैसे ही इस पाबंदी को ख़त्म करने का फैसला लिया गया है, कैदियों और लवाहिकीन में भी खुशी की लहर दौड़ गई है और कल से जो है जेलों में मकीद कैदी और असीरान अपने प्यारों से मुलाकात कर सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया फरजाना सिद्दीक हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताएं कि लॉकडाउन में नरमी, अब कैदी अपने प्यारों से मिल सकेंगे। IG जेल खानाजात मिर्जा शाहिद सलीम बेग ने हिदायत जारी कर दी। कोरोना के पेश नज़र मुलाकात पर पाबंदी लगाई गई थी। फैसलाबाद में 9 साल से मौजूद सरकारी स्कूल महकमा तालीम के रिकॉर्ड में ही नहीं। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल शक 228 को ऑनलाइन करने के लिए EMIS कोड ही जारी ना हो सका। इसी पर बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जी अपडेट कीजिएगा। जी, महकमा तालीम फैसलाबाद के ऑनलाइन रिकॉर्ड के मुताबिक 2209 स्कूल ऐसे हैं जो कि फैसलाबाद में रन किए जा रहे हैं, जिसमें बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। लेकिन फैसलाबाद के इलाका 228 कावे भोगनी का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ऐसा है जिसका रिकॉर्ड महकमा तालीम के पास ऑनलाइन मौजूद नहीं है, क्योंकि इस स्कूल को EMIS कोड नहीं लगाया गया, जिससे तमाम स्कूल्स का डाटा जो है वो ऑनलाइन पोर्टल पर मौजूद है। स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम के नाम से वेबसाइट बनाई गई है जिसमें तमाम स्कूल्स का डाटा मौजूद है। वहाँ पर बच्चों की असाजा की तादाद
मौजूद है, असाजा का रिकॉर्ड मौजूद है और तमाम जो प्रोसेस है असाजा के इवन ई ट्रांसफ़र जो हैं वो भी सिर्फ इसी सूरत मुमकिन है अगर ऑनलाइन सिस्टम में रिकॉर्ड मौजूद हो। तो इस स्कूल के असाजा जो हैं वो अपना ट्रांसफ़र भी नहीं करवा सकते क्योंकि EMIS कोड स्कूल को नहीं लगाया गया। और इस हवाले से महकमा तालीम फैसलाबाद की तरफ से 2019 में एक लेटर सेक्टर स्कूल्स को भिजवाया गया, लेकिन उस पर भी अमल दरामद ना हो सका और अभी तक इस स्कूल को EMIS कोड जो है अब वो नहीं लगाया गया, जिसके बायस नॉन सैलरी बजट जो डिवाइड किया जाता है PMIU की तरफ से वो भी स्कूल को हिस्से में नहीं आ रहा और दीगर स्कूल की ज़रूरियात जो हैं वो पूरी नहीं हो रही। इस हवाले से महकमा तालीम की तरफ से जो लेटर सेक्टर स्कूल्स को लिखा गया था उसमें ये डिमांड की गई है कि स्कूल को या तो किसी हाई स्कूल के साथ मर्ज किया जाए ताकि इसकी फंडिंग हाई स्कूल के साथ मर्ज किया जाए। बहुत शुक्रिया जहांगीर तफसीलात से आगाह करने के लिए। हफ्ता इतवार मार्केट खुलेगी या नहीं, किसको कितना इस्तिस्ना मिलेगा, ताजिर बरादरी परेशान। ताजिर बरादरी कहती है कि हुकूमत से पहले भी कहा कि ओपन पॉलिसी की जाए ताकि आवाम को आसानी हो सके। मजीद जानते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, क्या तफसीलात हैं? अगर ताजिर हजरात की बात करें तो हुकूमती एक्शन से खुश नजर आते हैं, लेकिन इसमें गोमगो की जो सूरत हाल है उसके ऊपर क्लैरिटी चाहते हैं कि हफ्ता इतवार को दुकानें खुलेंगी या नहीं खुलेंगी और हुकूमत इस हवाले से ठोस इकदाम करे, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन करती है तो वफाक कोई करती है, जिसके बिना के ऊपर ताजिर बरादरी इस हवाले से अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी करते हैं। साबिक सदर फैसला ऐवान सनत इजाज़त राव सिकंदर आज़म खान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जनाब साहब, क्या कहेंगे, हुकूमत की फैसले को कैसे देख रहे हैं? इजाफा टाइम में भी किया गया, दिनों में भी किया गया, लेकिन कोई भी क्लियर जो सिचुएशन वो नज़र नहीं आती गवर्नमेंट की तरफ से। जी बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। मैं समझता हूँ कि बड़ा रेलेवेंट ये क्वेश्चन है आपका और ये कन्फ्यूजन है कि इसको किस तरह हमने ख़त्म करना है। अब हफ्ता इतवार की छुट्टी के बारे में बिल्कुल साइलेंस है कि क्या वो होगी या नहीं होगी। हमारी डिमांड ये है कि 24 आवर आप इसको ओपन कर दो और लोगों के रश को आप बाउंड ना करो कि जी इस टाइम 6 बजे तक है, 8 बजे तक है। इसको जितना आप ओपन टाइम करेंगे उतना ही रश कम होगा और उसका फ़ायदा ये होगा कि उतना ही कोरोना का जो हमें ख़तरा है वो कम होता जाएगा। तो मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है कि आप अपनी पॉलिसीज़ को वाज़े करें और क्रिस्टल और क्लियर करें कि आपने करना क्या है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। जंग में फेस्को डिफॉल्टर्स की शामत आ गई। फेस्को ने डिफॉल्टर्स के खिलाफ मुहिम तेज कर दी। इसी पर बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर, बताइएगा। जी बिल्कुल, झंग में महकमा फेस्को की जानिब से डिफ़ॉल्टर्स के खिलाफ जो मुहिम थी उसको तेज़ कर दिया गया है। झंग में एक्सियन फर्स्ट डिवीज़न सैयद सलीम शाह की टीम ने जो है वो डिफ़ॉल्टर्स से रिकवरी की है और पैसे जो है वो फेस्को को जमा करवाएं। इसी वाले से सैयद सलीम शाह से बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि फेस्को डिफ़ॉल्टर्स के हवाले से कितने डिफ़ॉल्टर्स से आपके उनसे रिकवरी का क्या क्राइटेरिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली हमने अपने CEO जनाब अरशद मुनीर वड़ैच साहब की खसूसी हदायत की रोशनी में जितने भी हमारे डेट डिफ़ॉल्टर्स हैं इनके ख़िलाफ़ स्पेशल कैंपेन स्टार्ट की। तो उस कैंपेन के हमें काफ़ी फ्रूटफुल रिज़ल्ट्स मिले। तो मेरी जो डिवीज़न की डेट डिफ़ॉल्टर अमाउंट थी ये 50 मिलियंस के राउंड अबाउट है। तो इसमें से हमने इस वक्त तक 12 मिलियंस रिकवर कर लिए हैं। 1 करोड़ 20 लाख के राउंड अबाउट ये अमाउंट बनती है। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है उसके लिए मेरी टीम्स काम कर रही हैं और होपफुली हम इंशाल्लाह ताला विद इन फ्यू मंथ्स ये अमाउंट रिकवर कर लेंगे। सेकेंडली, मेरे ये जो डेट डिफ़ॉल्टर्स हैं इन लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी ये अमाउंट है ये बड़ा प्रेशियस रेवेन्यू है हमारा, तो वो मेहरबानी करें और ये अमाउंट जल्द अज जल्द डिपॉज़िट करवाएं हमारे अकाउंट्स में, ताकि जो अनइंटरप्टेड सप्लाई का सिलसिला है वो हम वहाँ पे ये अमाउंट इन्वेस्ट करके लोगों के जितने भी सप्लाई से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको हल कर सकें। इस अमाउंट से ही हमने लोगों के मसाइल को हल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया मुबशर तफसीलात से आगाह करने के लिए। DC ऑफिस में रमजान बाजार में ड्यूटी सर अंजाम देने वाले ACs और सुपरवाइजर में तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं शाहिदा घुमन से। जी शाहिदा, बताइएगा। जी, रमज़ान मुबारक में सस्ते रमज़ान बाज़ार जो कि हुकूमत और ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए लगाए गए थे, जिसमें तमाम ACs और सुपरवाइज़र जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी ताकि शहरियों को किसी भी किस्म की जो है वो कमी का सामना ना करना पड़े। रमज़ान मुबारक गुजरने के बाद डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की जानिब से उन तमाम ACs और सुपरवाइज़र जिनकी जानिब से ड्यूटियाँ सर अंजाम दी गई थी उनमें अप्रिसिएशन लेटर तकसीम किए। हमारे साथ मौजूद हैं AC सदर उमर मकबूल साहब। उनसे जानते हैं, सर बताइएगा DC साहब की जानिब से उन तमाम ACs में और जो सुपरवाइज़र
उनमें जो है वो अप्रिसिएशन लेटर दिए गए। कैसा लग रहा है कि किस तरीके से जो है वो अपनी रमज़ान मुबारक में अपनी जो ड्यूटियाँ हैं वो सर अंजाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीसी साहब ने जो है बिल्कुल जो हमारे रमज़ान बाज़ार लगे उसके बाद पूरी टीम को जो है यहाँ अप्रिशिएट किया, और इससे जो है वो एक्चुअली मोटिवेशन लेवल वो इंक्रीज़ होता है। और उन्होंने हर बाज़ार को ख़ुद भी देखा था, और उसके बाद उन्होंने आज जो है यहाँ पे एक तकरीब रखी जिसके अंदर उन्होंने जो है एप्रिसिएशन लेटर जो है वो दिए। सर कितने लोगों को यहाँ पे लेटर होना चाहिए? उन्होंने तकरीबन यहाँ पे 15 के करीब लोगों को जो ऑफिसर्स थे उनको जो सर्टिफिकेट्स दिए। तो और जो है उसके बाद उन्होंने जो है अपनी जो उसके अंदर उन्होंने चीज़ें देखी थी उनको वहाँ कन्वे भी की। जी, आज 15 सुपरवाइज़र्स और एसीज जिनके दरमियान जो ये अप्रिसिएशन लेटर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की जानिब से तकसीम किए गए, जिस पर बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। टोबा समेत जिले भर में मौसम बदला तो शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मच्छरदानी के स्टॉल्स लग गए। इसी हवाले से मजीद हमें बताएंगे शाहिद महमूद। जी शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मौसम तब्दील होते ही जो है सबसे अहम जो है शहरों पर जो है चीज़ नज़र आएगी, आपको मच्छरदानी नज़र आएगी, क्योंकि मच्छर बढ़ता है तो उसकी बचने के हवाले से लोग बड़ी तादाद में मच्छरदानियाँ खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे ही स्टॉल जो है मुख्तलिफ मुकामात पर सड़कों चौराहों पर नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो है लोग इसको ख़रीद रहे हैं। इस साइड पे जो है कुछ रेट भी तय हो रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे, उनसे जानते भी हैं क्या रेट शेट उनके दरमियान में बातचीत चल रही है। आप बताइएगा, आप ले रहे हैं, क्या रेट शेट बता रहे हैं भाई आपको? 600 रुपया मांग रहे हैं। इतनी महंगाई होगी है, मच्छर जीने नहीं देता। शहर में हमारे टोबा में स्प्रे नहीं हो रही डेंगू वास्ते, डेंगू मच्छर है, बच्चे तंग होते हैं, रात को मच्छर लड़ता है। फिर महंगाई इतनी है कि हम मच्छरदानी लेने आए हैं इधर, महंगाई की वजह से हम खरीद नहीं सकते, कारोबार नहीं है, क्या करें हम। इस तरह की बात सुनी दुकानदार बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।